to bring forward the balances of, why sitting at the last they will not speak, it creates disturbance in the class. To bring forward the balances of assets and liabilities, in the current year, we pass an entry. In the current year, we pass an entry which is called, bolo, which is called opening entry. फिर और elaborate करने के लिए, wherein all assets are being debited and all liabilities are being credited. In that case, we can have the following three cases. कौन से three cases? If assets are greater than liabilities, then capital will be the balancing figure. And circle कर दो. If capital is already given, capital question में ही given है, तो वो भी capital आप पिछले साल के आगे लेके आओगे, capital को आप already credit करोगे. If capital is already given, तो क्या होगा? Then capital reserve will be the balancing figure. And case is same, assets are greater than liability. But if assets are less than liabilities, then goodwill will be the balancing figure and goodwill will be debited in the entry. Goodwill will be the balancing figure. Goodwill will be the BF means balancing, right? This is the way. Now I have three different examples. It is not illustration, it is a part of theory. Theory में उसने मेरे को अलग-अलग तीन concepts समझाए हैं, means अलग-अलग तीन cases समझाए हैं. So that we are going to discuss. Any doubt to anyone? Whatever I wrote on the board. Any doubt to anyone? Everything is clear? Okay, come to example number 1. Yes, see, he will not tell what to do with the assets. He will not tell what to do with the liabilities. You know, assets का debit balance होता है और liabilities का credit balance होता है. So here in example number 1, I am going to prepare the format journal. I will find which are my assets that I will be debiting in the entry and which are my liabilities that I will be crediting in my entry, right? So here is the format of journal. Narration में लिखेंगे being an opening entry pass for the balances of assets and liabilities. ठीक है, बस इतना ही narration लिखना. चलिए जी. Cash is my asset that is to be debited or credited. That is to be debited or credited. Debited. Being an asset, it is to be debited. So cash का पिछले साल का या पिछले महीने का balance रहा होगा. And you know, if it is of last year, so this entry is to be passed on 1st April. 31 मार्च को अगर मेरे अकाउंट्स क्लोज हुए हैं तो ओपनिंग एंट्री हर बार 1 अप्रैल को होगी. अगर मेरे अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं तो ओपनिंग एंट्री हर बार 1 जनवरी को होगी. और अगर मैं मंथली प्रयास कर रही हूँ, दिस इज व्हाट अगस्त इज गोइंग ऑन, so this entry I will be passing on 1st August to bring forward the balances of assets and liabilities of July. So it depends upon the policy of the concern, how and when the concern is passing the entry, but it will be 1st of every month or every year. Got it? Done? Date is clear? चलिए जी. तो उसने लिखा है ये क्वेश्चन में 31 मार्च को कहता है ये बैलेंस थे. तो आमतौर पे ओपनिंग एंट्री साल के एंड में होती है, मतलब अगले साल की बिगिनिंग. पिछले साल के बैलेंसेस को जब आगे लेके आना है, उसके लिए जो एंट्री पास करते हैं उसे ही ओपनिंग एंट्री कहते हैं, राइट? सो इफ समबडी आस्क्ड फ्रॉम यू, कैश का जितना क्लोजिंग बैलेंस था वही अगले साल ओपनिंग बैलेंस भी हुआ ना. अकाउंट्स का ये रूल है. Whatever is the closing balance of assets and liabilities of the last year, that are going to be the same as the opening balance of the coming year. So अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को 15,000 था तो ओपनिंग बैलेंस भी 15 है. कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए. Whatever is the closing balance, that is going to be the opening balance on the very next day. एक दिन का ही तो गैप है. ये बैलेंस 31 मार्च को था तो 1 अप्रैल को भी तो सेम ही रहना है. रातों रात थोड़ी ना बदलना है. You are getting me? So this thing you should be clear with you. This is what 15,000.
नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक इज आल्सो माय एसेट एंड बैंक अकाउंट का मतलब क्या, माय बैलेंस अपीयरिंग इन द बैंक अकाउंट, मेरा बैंक में कितना बैलेंस चल रहा है, एंड दैट ही इज गिविंग मी इन द क्वेश्चन 25,000. नेक्स्ट स्टॉक इज टू बी डेबिटेड 20,000. Debtors are to be debited. Asset are debtors. Who will define debtors? I forget the definition of debtors. Can you remind it? कौन बताएगा? चलो घर बोलो, आप बैठ के बोलो. Definition of debtors. It is my asset. This I know, but I don't know the definition. You tell me. Okay, बिल्कुल ठीक है. These are the persons who owe to us. Which owe? ये वाला owe. They are liable to pay to us. ये वो बंदे हैं जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा हुआ है या इन्होंने मेरे से लोन वगैरह लिए. So they are my debtors. That's why they are my assets. Building is my asset to be debited. उसने सीक्वेंस वाइज से दिया, पहले सारे एसेट्स फिर सारी लाइबिलिटीज. So building is appearing 40,000. Furniture is to be debited. That is 5,000. Sundry creditors is to be credited because that is my liability. So two साथ लिखूंगी, प्रीफिक्स लगाऊंगी, जो भी क्रेडिट करती हूँ उसके साथ मैं टू वर्ड लगाती हूँ एंट्री में, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. और यहां पे नहीं लिखूंगी, इधर लिखूंगी, टू इधर लिखते हैं ना. This is 15,000. Next BP. What is the meaning of BP? Bills payable. Who will tell me the meaning? चलो हर्षिका बोलो. सही ढंग से बोलना, कंफ्यूज हो के नहीं. लोन फ्रॉम बैंक मेरे को समझ ही नहीं आया जो आपने बोला. बिल्कुल ठीक है. दिस इज अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय वी प्रॉमिस टू पे टू आवर क्रेडिटर्स, और हम साइन करके देते हैं, वो उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लगाता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसमें हम लोगों ने लिख के उसके साथ प्रॉमिस किया और साइन कर दिया, इतने दिनों के बाद इतनी अमाउंट हम तेरे को दे देंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल बीपी. So with a single vision I can come to know assets total is greater than liabilities total. Let me get the total. 15 और 25 40, 40 और 20 60, 90, 1 30, 1 35. एसेट का टोटल 135 आया. माइनस करते हैं 40 और 20 60. 1 35 में से 60 माइनस किया 75. ठीक है जी. 75,000 is our balancing figure. What should I call it? I will call it capital, because asset is greater than liability and my first preference is to capital. साथ में BF लिख के आना एग्जामिनर को बताने के लिए कि this you haven't given in the question, this we calculated. ये आपने नहीं दिया था हमें क्वेश्चन में, हमने कैलकुलेट किया 75,000. Any doubt to anyone? Is it all clear to everyone? Let's come to example number 2. Let's come to example number 2. देखो उसमें कैपिटल गिवन होगी, तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. एडजस्टमेंट एंट्री, सॉरी ओपनिंग एंट्री का नरेशन चेक करो, क्या लिखा है. चेक द नरेशन. व्हाट्स योर नेम? हाँ, सुमनदीप. यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम ना? Pass an opening entry or narration. Yes, being the opening entry as per balances passed. मैंने क्या बोला था? Being an opening entry passed for the balances of assets and liabilities. As per the balances given भी लिख सकते हैं, जो भी हमें balances दिए थे हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास कर दी opening. So this can be your narration. Now come to the example number 2. ऊपर लिखिए जर्नल. छोटा सा फॉर्मेट बनाइए जर्नल का. Cash is my asset, is to be debited. Cash account debited. Okay, मेरे को कहां से पता चला कि मेरे को ओपनिंग एंट्री पास करनी है? उसने पूछा ही है. पास एन ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल मींस ये बैलेंसेस कब रहे होंगे? 31 मार्च को रहे होंगे. कहता 1 अप्रैल को आप इन्हें आगे लेके आओ और इसकी एंट्री पास करो. सो हियर आई गो विद दैट. दिस इज व्हाट कैश अकाउंट1 लाख. जीरोस पूरी गिन के लिखनी है.
क्रेडिटर्स, थोड़ी सी स्पेस मैंने छोड़ दी, हो सकता है कोई और एसेट आए। तो सेकंड पे उसने बोला 2 क्रेडिटर्स, अकाउंट लिखिए साथ में, दैट इज 25,000. Then 2 capital is also my liability. 2 capital account that he is giving to me 2 lakh. Which side is greater? Liability side is greater. Liability side is greater. तो बैलेंसिंग फिगर फिर गुडविल आएगी, उलट है ना, कैपिटल इज गिवन बट इवन देन द लायबिलिटी साइड इज ग्रेटर देन एसेट. तो एसेट साइड में इंटेंशनली मैंने स्पेस छोड़ी थी कि हो सकता है कोई एसेट आए. सो हियर कम्स दैट एसेट. Got it? Liability plus capital should be equal to asset, लेकिन asset में सिर्फ कैश दे रखा है, तो which asset is missing? That is goodwill is missing. We will be calling it goodwill. Goodwill account debited. साथ में लिखिए बैलेंसिंग फिगर, 225 में से 1 लाख माइनस किया 125. Any doubt to anyone? Being an opening entry passed as per the given balances. जो हमें balances दिए थे उसकी हेल्प से हमने ओपनिंग एंट्री पास कर ली. चलें आगे. अब फिर से कैपिटल गिवन होगा, लेकिन एसेट साइड का टोटल ग्रेटर होगा, तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आएगा. राइट, लेट्स सी. थर्ड एग्जांपल देखिए. This is example number 3. Which assets he is giving? Building is to be debited. Building account debited. आगे बोलो. Cash is also my asset. Cash account debited. Let me write their amount. This is 80,000. Always prefer to write the amounts with commas and digit के नीचे digit, जैसे मैथ्स में किया करते थे. This is what 40,000, digit के नीचे digit. Then I have liabilities to loan account. This is 15,000. Then 2 capital account, that is 60,000. So which side is greater? Asset side is greater. This is 120. 120 में से 75. अगर 80 माइनस करती तो 40 होता. 45,000. 45,000 is the balancing figure. This is what we call capital reserve. 2 capital reserve. Capital is given. Capital can't be now the balancing figure. Reserve I must write with it. मेरे को ना यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बता देना चाहिए. रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इज द बैलेंसिंग फिगर. ध्यान से सुनना. पहले तो अकेले रिजर्व का मतलब क्या है? बाय फॉलोइंग conservatism concept, it is the rule of the business that we always save for future. Conservatism हमें क्या कहता है? Always provide for losses, never for profit. Means जिन दिनों आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उन दिनों आप प्रॉफिट में से कुछ सेव करके रखिए, और जो सेविंग आप करके रखेंगे उसे हम लोग बिजनेस में रिजर्व्स कहते हैं. We are keeping aside certain money out of our profit. हम सारा पैसा खर्च नहीं कर देते प्रॉफिट का, उसमें से कुछ हम सेव करके रखते हैं, उसे रिजर्व कहते हैं. घरों में आपके पेरेंट्स आपकी हायर एजुकेशन और ब्याह शादियों के लिए जो जोड़ के रखते हैं वो सेविंग होती है. यहाँ पे बिजनेस में उसे सेविंग ना कह के रिजर्व कहते हैं. Now the question arises, why this is named as capital reserve? Because these are being created out of capital profits. दो तरह के प्रॉफिट होते हैं बिजनेस में. एक रेगुलर प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाते हैं, और एक होते हैं कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं. बहुत कुछ बताना पड़ता है फिर कॉन्सेप्ट समझ आता है. नॉन रेकरिंग का मतलब कभी कभार होते हैं. जो रेगुलर प्रॉफिट होते हैं वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है. सामान बेचा, सेल हुई, परचेसेस, खर्चे सारे माइनस किए, प्रॉफिट हो गया. ठीक है, ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर? व्हेन यू सेल ऑफ योर ओल्ड एसेट एंड यू सेल इट एट हायर प्राइस देन इट्स कॉस्ट, सो व्हाटएवर प्रॉफिट इज देयर दैट इज नेम्ड एज कैपिटल प्रॉफिट. पुराने एसेट्स बेचने पे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं. इन कैपिटल प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट अगर साइड पे रखा तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं. लाइक मैंने पुरानी बिल्डिंग बेची, मैंने प्लॉट खरीद के रखा था आज से 5 साल पहले, 50 लाख का था, आज 70 लाख का बिका, 20 लाख जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट.
मैंने कोई लॉटरी टिकट खरीदी थी, बिजनेस के पैसे में से लॉटरी की विनिंग हुई, कैपिटल प्रॉफिट है। आई इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ सम कंपनी, पड़े पड़े शेयर की वैल्यू डबल हो गई, ठीक है, मैंने बेच दिया उनको, तो जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस का नहीं है, इट इज नॉट फ्रॉम माय रेगुलर एक्टिविटीज, दैट प्रॉफिट वी कॉल कैपिटल प्रॉफिट। एंड आउट ऑफ दैट कैपिटल प्रॉफिट, इफ यू कीप असाइड सच मनी टू मीट द इमरजेंसी सिचुएशंस इन द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, कुछ भी हो सकता है, तो उन इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए जो पैसा आप बिजनेस में सेव करके रखते हो उसे रिजर्व कहेंगे, क्योंकि ये रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट्स में से बने हैं, इसलिए कैपिटल रिजर्व। गेटिंग मी? जो सिंपल रिजर्व होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में से बनेंगे, उन्हें या तो रेवेन्यू रिजर्व कहेंगे, या अकेला रिजर्व कहेंगे, या जनरल रिजर्व कहेंगे, मतलब आम सा रिजर्व है। बट व्हाटएवर इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ माय कैपिटल प्रॉफिट, दैट रिजर्व वी कॉल कैपिटल रिजर्व्स। कम एट द बैक एक्सरसाइज, सीधा तीनों केसेस मैंने करवा दिए, आपने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने खुद। कम एट द बैक एक्सरसाइज एवरीवन। ओपनिंग एंट्री प्लस कंपाउंड एंट्री अगर इकट्ठा है तो वी विल डू दैट। 41st question from the back exercise, everyone will solve. 41st question from the back exercise, page number 4.71, and the question is in the books of Rajkumar. In the books of Rajkumar, everyone will solve. फर्स्ट अप्रैल को कहता है ये बैलेंसेस अपीयर, जैसे इसने वर्ड लिखा ये बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे, मेरे को लगता है कि उन बैलेंसेस को फॉरवर्ड करना चाहिए, मेरे को ओपनिंग एंट्री पास करनी चाहिए। सो लेट्स पास द ओपनिंग एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेट का कॉलम खुद बनाना, कैश अकाउंट डेबिटेड, 41st क्वेश्चन इट इज, yes, building account debited, let's write their amounts also, 50,000, 1,50,000, 2 creditors, that is my liabilities, that's why it is being credited, 45,000, stock is to be debited। अब randomly दिए हुए हैं, कभी कोई asset लिख रहा है, कभी कोई liability लिख रहा है, stock is to be debited, being an asset, 55,000, 2 bank loan is my liability, 38,000। चलिए जी, 255 में से माइनस करिए 13, 83, दिस इज व्हाट 2, बिल्कुल ठीक, 172 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, 2 कैपिटल। अगली एंट्रीज करिए खुद। Being an opening entry pass for the given balances, 172, डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए, कॉमास के साथ अमाउंट, राइट। Let's proceed to the next entry. Who will tell me the next entry? Yes, yes. Again, it is a new case for us, but that is also going to be the opening entry. ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, आप किसी का चलता चलाता बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। जब आप किसी का चलता चलाता बिजनेस टेक ओवर करोगे तो आप उसकी लायबिलिटीज भी ले लोगे, एसेट्स भी ले लोगे, उस टाइम पे भी जो एंट्री होगी वो भी ओपनिंग एंट्री। मींस अपने बिजनेस के, चलते हुए बिजनेस के जब आप बैलेंसेस आगे लेके आते हो वो भी ओपनिंग एंट्री है, लेकिन जब आप किसी का चलता चलाता बिजनेस टेक ओवर कर लेते हो उस टाइम पे सारे एसेट्स आपके हो गए, सारी लायबिलिटीज आपकी होगी, ठीक है। तो सारे एसेट्स डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे। लेट्स सी 16th April, व्हाट इज गोइंग टू हैपन when we buy or we purchase somebody's running business. For example, that person thought or decided to settle abroad with the family, लेकिन उसका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चल रहा था, आपने उसकी शॉप के साथ सारा कुछ टेक ओवर कर लिया एंड यू पेड हिम। देखते हैं पेमेंट के बारे में क्या बोला उसने। आपने बोला मुकेश का बिजनेस हम 5 लाख में लेंगे, वो बाद में बताती हूँ, 5 लाख में खरीदा और बदले में हम उसके सारे एसेट्स ले लेंगे। इट मींस की ओपनिंग एंट्री इन बिटवीन द ईयर भी हो सकती है इफ यू बाय समबडीज रनिंग बिजनेस। वैसे मैंने बोला ओपनिंग एंट्री इज ऑलवेज पास ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, बट दिस ओपनिंग एंट्री आई एम पासिंग इन बिटवीन द month or in between the year. Why? Because hereby we are buying somebody's running business, so we are taking over all assets. Machinery is to be debited. नया केस है फिर से आपके लिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड,
Let's write their amount now. 280, 210. 2 creditors, 90. और मैंने मुकेश को बोला तेरा बिजनेस में 5 लाख में खरीदूंगी. टू मुकेश, आई एम लायबल टू मुकेश. मुकेश इज बिकमिंग माय क्रेडिटर है. ठीक है, और कितने से? 5 लाख से. अब देखो बैलेंसिंग फिगर कहां. हाँ, दिस इज 5 लाख, दिस इज 590. देखो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फंडा है. आपने एसेट लिए 5 लाख के, लाइबिलिटीज ली 90 की. ओवरऑल इसको 4,10,000 पे करना चाहिए था, है ना. एसेट्स का टोटल कर लो और लाइबिलिटीज बीच में से माइनस कर दो तो 4,10 पे करना चाहिए था. लेकिन हमारी तो सेटलमेंट हुई कि हम तेरे को 5 लाख देंगे. इट मींस कि 90,000 आपने ज्यादा दिया. काहे के लिए ज्यादा दिया? गुडविल के लिए भाई. उसका नेम और फेम रहा होगा. उसने बोला कि मैंने अपने एफर्ट करके बिजनेस अच्छा खासा चलाया हुआ है, तेरे को उसका बेनिफिट होगा. सो यू पे समथिंग एक्स्ट्रा टू मी एंड दैट एक्स्ट्रा वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. सो दिस 90,000 इज आवर गुडविल. एनी डाउट टू एनीवन? अगली एक एंट्री कर सकते हैं, पता नहीं बुक करती है कि नहीं. मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश. मुकेश को पेमेंट भी तो करनी है 5 लाख. एक और एंट्री यहाँ पे हो सकती है, मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि मुकेश को 5 लाख अमाउंट ड्यू हुई. हमने 5 लाख में उसका बिजनेस खरीदा, उसका चलता चलाता बिजनेस मैंने 5 लाख में खरीदा. अब अनिल का बिजनेस खरीदा, अगली खुद करो. और अनिल का बिजनेस मैंने कितने में खरीदा? 3 लाख में. वहां पे देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आती है. सी, वहां पे बैलेंसिंग फिगर मेरे को लगता है कैपिटल रिजर्व आएगी, क्योंकि वो दोनों केसेस आपको सिखाना चाहता है. लेट मी सी फ्रॉम इलस्ट्रेशन, क्या मुकेश को पेमेंट करने की एंट्री करता है? इसने कोई चलता चलाता बिजनेस हमें बताया. दीनदयाल का बिजनेस खरीदा. बेटा मेरी एक बात सुनना ध्यान से. आपकी बुक वाले ने ना जब सॉल्व किया ना तो उसने मुकेश नहीं लिखा, एक इलस्ट्रेशन है पीछे, ठीक है. उसने यहाँ इस पे कैपिटल लिख दिया. कैपिटल लिखना मेरे को नहीं लगता कि सही है. कैपिटल लिखना रॉन्ग है. वी आर लायबल टू मुकेश ना, हाउ कैन दिस बी आर कैपिटल? क्योंकि +2 में सेम टॉपिक मैंने आपको करवाना, तब मैंने पर्सन का नाम लिखवाना. तो बेटर है आप यहीं पे उस बंदे का नाम ही लिखो. वी आर बाइंग द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन एंड वी आर लायबल टू हिम. हाउ कैन इट बी कैपिटल? कैपिटल तो वो होती है जो हम लगाते हैं बिजनेस में, ठीक है ना. हियर बाय तो वी बॉट समबडीज रनिंग बिजनेस. आप पेज नंबर 4.46 पे आओ, ताकि आप घर में जब जाके करो इलस्ट्रेशन तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. 4.46 और 4.45 पे क्वेश्चन है. 10 अप्रैल की एंट्री पढ़ो. 4.45 पेज नंबर पे 10 अप्रैल की एंट्री पढ़ो. परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ दीनदयाल for ₹39,000. Stock is to be debited, furniture is to be debited, 2 creditors. पीछे टर्न करो. 2 दीनदयाल लिखना चाहिए था, है ना. इसने 2 कैपिटल लिखा 39. हम दीनदयाल ही लिखेंगे, राइट. यहाँ पे आप स्लैश डाल के लिखो कि दीनदयाल लिखना. हम we will write the person's name from whom we are buying the business. Yes, next entry you can pass on your own दीनदयाल to cash. अब पेमेंट कर दो उसे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला किसको पेमेंट करो? मुकेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश. तो कुछ लॉजिक भी लगता है. कैपिटल जब लिख देते हैं तो लॉजिक नहीं लगता. पता नहीं वो कैपिटल क्यों लिखता है. हर साल मैं डिस्कस करती हूँ बच्चों के साथ. वी शुड नॉट राइट कैपिटल. कैपिटल इज व्हाट वी इन्वेस्ट टू रन आवर बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ही ट्रीटेड एज कैपिटल, राइट. बेटर टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom you are buying the business or whose business you bought. जिसका बिजनेस आपने खरीदा उसका नाम लिखो, राइट. अब करो अगला, अनिल वाला करो. बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ. कैपिटल रिजर्व भी नहीं लिख सकते. कैपिटल रिजर्व तो तब लिखेंगे अगर ऊपर वाली साइड क्या होगी. अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस पर्सन के नाम पे, फर्स्ट प्रेफरेंस पर्सन के नाम. अनिल वाले केस में देखते हैं क्या होगा. अनिल वाले केस में क्या है? नहीं, अनिल का नाम ही लिखेंगे. अनिल का नाम ही लिखेंगे. जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो पर्सन का नाम ही लिखना. वहां पे दूसरा कोई चांस ही नहीं है.